This conference will now be recorded. Hello student, once again myself Samadhan Patil, and today we are going to learn about the method of variation of parameter. Yesterday we have started that. कल हमने वो method देखा है actually what is the method of variation of parameter, and now tomorrow we will discuss about some more examples on that MVP. So one example we have seen, and this one now we are going to discuss. D स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल टू कोसेक एक्स। ये एग्जाम्पल हमने आज एक्चुअली कल मैंने आपको ये इसका बेसिक बताया था हाउ टू सॉल्व दिस। ओके, so let us hope you have solved that, so check whether it is correct or not. Okay, now here take the auxiliary equation first. So your auxiliary equation is simply it is d square plus 1 is equal to 0. So roots are simply d is equal to plus minus I. So your complementary function is c1 cos of x plus c2 sine of x. Yesterday we have talked about this. So therefore if we compare this with c1 y1 plus c2 y2, okay, so your y1 is simply cos x and your y2 is nothing but your sine x. Okay, that we have seen. Take the derivatives. इनके डेरिवेटिव लेने हमको w निकालना है. So y1 dash is equal to minus sin x, जैसा हमने कल देखा था, and y2 dash is equal to cos x. Okay, so this is y1 dash and y2 dash. Now from this, what is w? So your w is simply determinant. W means Wronskian. So y1, y2, y1 dash, y2 dash. Okay, so if you find this, this is equal to the value of y1, it is cos x, then it is sin x, then minus sin x and cos x. So if we solve, cross multiply, so cos square x plus sin square x, and it is simply 1. Identity, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. And finally what I get, your w is equal to 1. ये w मुझे मिल गया यहाँ पे. तो अभी क्या करना है, yp कंसिडर करना है यहाँ पे. So what is yp? And here yp is equal to uy1 plus vy2. Okay, so where what is v? Where v is equal to, sorry, u is equal to integration minus y2 into x divided by w dx. ओके, y2 का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करना है. तो जैसे कि हमने देखा y2 इज नथिंग बट sin x. ओके, और कैपिटल x जो है आपका cosec x है, तो ये सारे वैल्यूज यहाँ पे रिप्लेस करने हैं. So what I get here, this is equal to integration minus बाहर आ जाएगा, y2 is sin x into x is cosec x and divided by w is nothing but 1 that we have now. तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स. तो हमको और एक रिजल्ट पता है, कोसेक एक्स इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा. Okay, means cosec x is 1 upon sin x, so we can replace that value over here. So this is 1 upon sin x into dx. तो ये sin x कैंसिल हो जाएगा और मुझे सिर्फ यहाँ पे इंटीग्रेशन माइनस 1 dx मिलेगा. और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है. Okay, so this is equal to what, minus x. This is our u. ये u मिल जाएगा मुझे. Now what about v? Okay, so v is equal to integration y1 x divided by w dx. तो y1 का वैल्यू जो है मेरा, वो तो
cos x है और ये जो x है ये इंटू कोसेक x हो जाएगा डिवाइडेड बाय w का वैल्यू आपका 1 इंटू डी एक्स। ओके, तो ये मुझे मिल जाएगा cos x और cosec मीन्स 1 अपॉन साइन हो जाएगा sin x dx। Okay, it is very simple, and this is equal to integration of cot x dx, because sin upon cos is nothing but cot. Is sin theta upon cos theta is simply cot theta. We know this result. And integration of cot is what? Integration of cot theta d theta is equal to log of, I think, sin theta. Okay, so the answer of this is nothing but log of sin theta. This is your v. ये u मिल गया, मुझे v मिल गया। इंटीग्रेशन चेक करो फिर से। yes, it is absolutely correct. So therefore what? Therefore yp is equal to, yp क्या मिलना, मैंने कंसीडर किया था uy1 plus vy2। तो यहाँ पे u का भी वैल्यू रिप्लेस करना है, v का भी वैल्यू रिप्लेस करना है, y1 y2 दोनों रिप्लेस करना है। सो यहाँ पे मुझे u तो मिल गया माइनस एक्स, y1 इज नथिंग बट अवर cos x, प्लस v मिल गया log ऑफ साइन थीटा, साइन x चाहिए नॉट थीटा, सॉरी फॉर दिस इज x, और y2 है मेरा साइन x, सो साइन x into what, this is sin x into log of sin x, that's it। okay, so this is our yp, और आपका अभी ये जो एडिशन है वो करना है। so therefore complete solution is y is equal to yc plus yp। yc का वैल्यू लिखना है c1 cos x plus c2 sin x प्लस yp मिल गया मुझे sin x into log of sin x, सॉरी माइनस x, ये पूरा लिखना है। so this is yp minus x cos x plus sin x into log of sin x। ये हो गया उसका पूरा आंसर। गॉट इट? एनी डाउट? if you have any doubt you can ask। okay, so see here what we have done actually, so same as that previous। okay, कल जो हमने लेक्चर में देखा कि अगर आपका इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और वो शॉर्टकट मेथड में नहीं आता है, बिकॉज yc means complementary function and yp means particular integral। so this is your yc, this is complementary function, and this is yp। yp actually it is a particular integral। These are the two parts of the solution of ld, particular integral। okay, so we just add them to get the complete solution। Our complete solution is nothing but complementary function plus particular integral। okay, and we have that now, complementary function as well as particular integral। okay, तो ये जो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि ये MVP क्यों यूज किया हमने, क्योंकि ये जो कोसेक एक्स है इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट मेथड में केस नहीं है कौन सा भी। ओके, सो ये आपका शॉर्टकट मेथड से सॉल्व नहीं होगा। आइदर यू कैन यूज जनरल मेथड और मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, बट इंस्टेड ऑफ जनरल मेथड दिस इज वेरी सिंपल, क्योंकि वहां पे इंटीग्रेशन डिफिकल्ट इंटीग्रेशन आएंगे वहां पे थोड़े से इसके कंपैरिजन में। ओके, यहाँ पे इंटीग्रेशन है नो डाउट, but these are the basic integrations, very basic integration। okay, and that in the general method that integrations are somewhat challenging। okay, you just have to pay more efforts to solve all that integrations in the general method। We'll discuss general method also, no doubt about that। now let us see the next, d square plus 3d plus 2 into y is equal to sine of e raised to x। This is one more example for
मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर. सो लेट अस फर्स्ट कंसीडर द ऑक्सिलरी इक्वेशन. देखो एमवीपी में पहला तो एम आपका कौन सा भी मेथड यूज करो आप, पहले तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना ही है. ओके, सो देन आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए जाना है. बट स्पेसिफिकली इन मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर हमको क्या करना है कि अगर आपको y1 और y2 नहीं मिलते तो आप आगे नहीं जा सकते, u और v नहीं फाइंड कर सकते. और y1 y2 कहाँ से मिलेंगे हमको? हमको वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से मिलेंगे. और आपको अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अभी तक दिक्कत है, कैसे फाइंड करें? Okay, or those who have newly joined, so just please refer the first lecture that we have already discussed in detail about the complementary function, and that lecture is already uploaded on the website. YouTube चैनल पे जाओ, वेबसाइट पे जाओ, आपको वो लेक्चर मिल जाएगा. वहां से ठीक से देखो. बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखे हैं कि कैसे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन. Okay, so once if you understand that, then and then you can understand the method of variation of parameter. Okay, so auxiliary equation consider करना है आपको. auxiliary equation मिल जाएगा यहाँ पे. ये जो है ये आपका auxiliary equation है. So this is your auxiliary equation. It is d square plus 3d plus 2 equal to 0. So this is our auxiliary equation, and the roots of this equation are, what are the roots of this equation? देखो इसके रूट्स मिल जाएंगे मुझे. ये 2 के ऐसे फैक्टर चाहिए कि जिनका एडिशन मेरा क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए और प्रोडक्ट 2 आना चाहिए. और मैं 2 and 3 ले लेता हूँ यहाँ पे. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. सो रूट्स आर 2, 3. Sorry, 2, 1, not 2, 3. Sorry for this. This is 2, 1. These are the roots, 2 and 1. So if you take the addition, we'll get 3, and if you take the product, it is 2. Okay, so basically your yc is c1 e raised to 2x plus c2 e raised to x. Call it as 1. This is our complementary function. ये मिल गया. अभी ये किससे कंपेयर करना है आपको? c1 y1 प्लस c2 y2 से कंपेयर करना है. तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा y1 is e raised to 2x और y2 मिल गया मुझे e raised to x. तो इनके डेरिवेटिव फाइंड करने हैं. y1 dash this is equal to 2 e raised to 2x. डेरिवेटिव इट इज बेसिक. y2 dash e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x से मिल जाएगा. ओके, वो चेंज नहीं होता है. तो अभी मुझे w निकालना है. तो w मुझे मिल जाएगा y1 y2 y1 dash y2 dash. अभी साइन कॉस में नहीं है. देखो पहले तो एग्जांपल में देखा हमने कि y1 y2 साइन कॉस में था, अभी साइन कॉस में नहीं है, e raised to के पावर में. तो यहाँ पे मुझे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है y1 का. सो y1 का वैल्यू मिल जाएगा मुझे e raised to 2x. ऑलरेडी हमने फाइंड किया है. उसका डेरिवेटिव है e raised to 2x, 2 e raised to 2x. y2 आपका है e raised to x और इसका डेरिवेटिव एज इट इज e raised to x. तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर मैंने किया तो e raised to 2x into e raised to x मिल जाएगा. e raised to 2x into e raised to x माइनस ये 2 e raised to x 2x into e raised to x. बट व्हाट इज e raised to 2x into e raised to x? देखो फिर से हमारे पास लॉज ऑफ इंडाइसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है इंडाइसेस के. देखिए ये हर जगह लगते हैं हमको. इट इज a raised to m plus n. अगर बेस सेम हुआ तो एक्सपोनेंट जो होते हैं, जो पावर होता है उसका एडिशन होता है. तो e raised to 2x है मेरे पास, into e raised to x है, बेस सेम है, e बेस है तो पावर का एडिशन हो जाएगा 2x plus x, and this is e raised to 3x. Got it? तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा this is e raised to 3x minus 2 e raised to 3x. So 1 time e raised to 3x minus 2 time e raised to 3x. It is simply minus e raised to 3x. Got it? Any doubt in the w? So from this what I have, w is equal to minus e raised to 3x. ये आपको देखना है अच्छे से. ओके, तो अभी
w मिल गया, y1 है मेरे पास, y2 है मेरे पास, तो मैं डायरेक्टली yp कंसिडर करता हूँ. सो देयरफॉर व्हाट इज माय yp? इट इज uy1 प्लस vy2. ओके, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो. और यू वी फाइंड करेंगे और उसमें रिप्लेस कर देंगे. y1 y2 हमारे पास ऑलरेडी है. सो वेर u इज व्हाट? वेर u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस y2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय w dx, ऐसा मिल जाएगा. देखते हैं अभी क्या होता है. ये थोड़ा अलग होगा इंटीग्रेशन. दिस इज इक्वल टू, माइनस तो बाहर ले लिया, y2. व्हाट इज y2? तो y2 ई रेस टू एक्स मिल जाएगा. यहाँ पे है देखो, ये जो आपका है ये y2 है, ई रेस टू एक्स. y1 ई रेस टू 2x है. ओके, और दिस इज ई रेस टू एक्स. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x देखते हैं क्या है. साइन ई रेस टू एक्स. दिस इज आल्सो अ चैलेंजिंग इंटीग्रेशन. ओके, so sin e raised to x. ये e raised to x जो है साइन के बाद वो एंगल है, ध्यान में रखो. दिस इज इन द एंगल. ओके, नहीं तो बहुत बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, ये e raised to x और ये e raised to x मर्ज काट डालते हैं और इसको e raised to 2x लिखते हैं. इट इज रॉन्ग. ओके, सो इट इज एंगल एक्चुअली. डिवाइडेड बाय क्या आएगा अभी? डिवाइडेड बाय w तो आपका अभी मिल गया, माइनस e raised to 3x. ओके, ओके इंटू dx. तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा. और ये ये डिनोमिनेटर में e टू 3x है, ऊपर e टू x है. तो अगर मैंने ये सॉल्व किया तो देखो क्या मिलेगा. e टू x ऊपर है और नीचे e टू 3x है. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, e टू x और ये ऊपर जाएगा, e टू माइनस 2x हो जाएगा. Am I right? और ये अगर माइनस 2x हो गया तो मुझे क्या मिलेगा? e टू, सॉरी माइनस 3x, नॉट 2x, इट इज माइनस 3x. तो e टू माइनस 2x मिल जाएगा मुझे. e टू माइनस 2x. ओके, तो अभी ये जो है ये कैसे सॉल्व करना है? तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा और कुछ अ, दूसरा अगर रास्ता निकलता है तो वो भी देखेंगे हम. बट y2 whatever that y2 we have taken, it is e raised to x. ओके, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, e raised to माइनस 2x मिल गया. और साइन ऑफ e raised to x dx. So tell me what I have to do. कैसे सॉल्व करना है, क्या सब्स्टिट्यूशन लेना है, और उसके बाद कैसे मुझे सॉल्यूशन मिलेगा? टेल मी. तो यहाँ पे देखो e रेस टू x, ये तो हम इसको मल्टीप्लाई में नहीं ला सकते. अगर मैंने e रेस टू x के जगह पे t लिया तो e रेस टू x dx क्या मिल जाएगा मुझे? dt मिल जाएगा. और e रेस टू x नहीं है यहाँ पे, तो क्या करना है? e रेस टू x लाना है मुझे, वो नहीं है वहां पे. तो e रेस टू माइनस टू एक्स में से e रेस टू x कैसे निकालना है वो देखना है मुझे. हाउ आई गेट दैट? e रेस टू x कैसे निकालेंगे? ओके, तो यहाँ पे अगर मैंने एडजस्टमेंट किया थोड़ा सा तो मुझे मिल सकता है कुछ तो भी. बट व्हाट इज दैट एडजस्टमेंट? दैट यू जस्ट हैव टू raised to x into e raised to minus 2. e raised to x into e raised to minus 2, that become t square after that. But I want e raised to x into dx. ये चाहिए. E raised to x raised to minus 2. See, if I take that e raised to x, आप ऐसा बोल रहे हैं into e raised to minus, okay, e raised to x raised to minus 2. Am I right? Then sine of e Yes, raised yes. to x dx.
but this is not working. Why? Because if I take e raised to x is equal to t, मुझे ऐसा सब्स्टिट्यूशन लेना है कि उसका डेरिवेटिव उधर चाहिए, तो e raised to x का डेरिवेटिव नहीं है ना इधर, फिर इधर तो e raised to माइनस टू एक्स है, इधर e raised to x नहीं है, तो क्या करेंगे? अगर e raised to x होता तो ठीक था. Got my point? तो अगर हम रिप्लेसमेंट भी नहीं, अगर डिवाइड नहीं करते, तो ऊपर ऊपर मुझे ये मिल जाता है e raised to x. डेरिवेटिव चाहिए मुझे, तभी मैं सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूँ, अदरवाइज आई कैन नॉट मेक द सब्स्टिट्यूशन ओवर देयर. ओके, तो e raised to x ऊपर है, ये प्लस 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 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन प्लस e raised to x into sin of e raised to x मिल जाएगा, divided by e raised to 3x as it is into dx. ओके, तो अभी यहाँ पे जो मिलेगा मुझे, अगर मैंने ये सब्स्टिट्यूशन लिया तो क्या मिलेगा? डिवाइड नहीं करना है आपको, सब्स्टिट्यूशन लिया, e raised to x के जगह पे अगर t लिया तो e raised to x dx मिल जाएगा मुझे dt. ओके, तो ये जो पूरा पार्ट है e raised to x dx, इसके जगह पर मैं dt रिप्लेस कर सकता हूँ. ओके, और ये जो e raised to x है, तो उसके जगह पर मैं t ले सकता हूँ. ओके, तो फाइनली मुझे मिल जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन e raised to x dx means dt, and now it is sin of t dt divided by, अभी देखो यहाँ पे मेरे पास e raised to 3x है, तो e raised to 3x means e raised to x raised to 3, तो ये क्या हो जाएगा? t क्यूब हो जाएगा ना ये. इज इट राइट? ये डिवाइड में मुझे टी क्यूब मिल जाएगा, और अभी डिवाइड में अगर टी क्यूब लिया तो मैं इंटीग्रेशन में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा वो, क्योंकि वो ऊपर जाके डायरेक्टली मुझे टी रेस टू माइनस 3 मिल जाएगा. देखो ये तो हो गया मेरा टी टी क्यूब, तो अगर मैंने इसको ऊपर लिया, इंटीग्रेशन टी रेस टू माइनस 3 हो जाएगा, और साइन टी डी टी. तो ये इंटीग्रेशन अगर आप सॉल्व करने के लिए जाते हो तो इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर यूज किया हमने तो वही एक ऑप्शन है हमारे पास. तो आप u और v का जो चॉइस है आपका, वो आपको दिक्कत देगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव वैनिश होना चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा, वो बढ़ता ही जाएगा. ट्राई करके देख लो आप. टी रेस टू माइनस 3 है, इसका अगर डेरिवेटिव लिया आपने विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या आएगा? ये -3 टी रेस टू -3 -1, तो ये आ जाएगा -3 टी रेस टू -4. तो पावर बढ़ गया, कम नहीं हुआ. अगर फिर से आपने डेरिवेटिव लिया डी डी टी ऑफ -3 टी रेस टू -4 का, तो ये -3 -4 माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, टी रेस टू -4 -1, तो 12 टी रेस टू -5 हो जाएगा. हर एक टर्म में जैसे जैसे आप डेरिवेटिव बढ़ाते हो वो उसका पावर बढ़ते जाएगा. मीन्स ये जीरो होना चाहिए एक्चुअली, तो ये जीरो नहीं हो रहा है, हम जैसे जैसे डेरिवेटिव लेंगे. तो हाउ वी कैन solve this integration, how we can find the particular integral for this type of equation? That's why for this type of equation there is a general method. Okay, तो इस टाइप के सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास जो है वो जनरल मेथड है. सो जनरल मेथड से हम क्या कर सकते हैं, हम इजीली वो फाइंड कर सकते हैं क्या, डेरिवेटिव्स इजीली हम इसका सॉल्यूशन within a 3 to 4 step we can find out. बट यहाँ पे भी हमको सॉल्यूशन मिलेगा. हम पहले तो भी देखते हैं क्या मिलता है, भी में भी डिफिकल्टी आती है क्या, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड
your v is nothing but y1x upon w dx. ओके, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा y1 तो मेरा e raised to 2x है, देन उसके बाद x जो है साइन ऑफ e raised to x है डिवाइडेड बाय e raised to 3x into dx. ओके, तो ये e raised to, यस इसमें भी प्रॉब्लम आएगा, ये एग्जांपल एमवीपी से सॉल्व नहीं होगा, खाली आपको yc मिलेगा यहाँ पे. ओके, नहीं तो फिर आपको e raised to x का जो पावर है वो चेंज करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे e raised to 3x लेना पड़ेगा. अगर आपने यहाँ पे e raised to 3x लिया तो हो सकता है आपको वो सॉल्यूशन मिल जाएगा. ओके, तो ये जो प्रॉब्लम है हम जनरल मेथड से सॉल्व करेंगे. ओके, वहां पे देखते हैं, मैंने इंटेंशनली ये प्रॉब्लम आपके लिए इसलिए रखा कि आपको वो, अगर एग्जाम में आपके सामने ये एग्जाम्पल है तो आप हो सकता है जा सकते हैं एमबीपी के लिए. एमबीपी में अगर आपको दिक्कत आती है तो देयर इज अनदर ऑप्शन, इट इज अ जनरल मेथड, क्योंकि ये जो साइन ई रेज़ टू एक्स है ये शॉर्टकट मेथड से नहीं आएगा. ओके, क्योंकि शॉर्टकट मेथड से क्या होता है, शॉर्टकट मेथड के लिए आपको साइन ए एक्स प्लस बी चाहिए और कॉस एक्स प्लस बी चाहिए फंक्शन में, तो यहाँ पे साइन ई रेज़ टू एक्स है. ओके, so try to find if you want to solve this with the help of MVP. अगर आप ट्राई करके देखिए, हो सकता है आपको आंसर आ जाए. ओके, एंड इफ यू हैव अ डाउट देन वी विल डिस्कस दैट वन मोर टाइम. ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट. यहाँ पे e raised to 2x कर सकते हैं, e raised to 3x अगर मैंने किया तो ये बहुत इजी हो जाएगा. देखो, क्योंकि यहाँ पे e raised to 3x के लिए मैं सब्स्टिट्यूशन ले सकता हूँ, ये नीचे भी e raised to 3x है. ओके, so in that case we will do something about that. Okay, we just give the justice for that, but for the sin e raised to x we have some difficulty. We will solve this example with the help of better way general method, and in the upcoming lecture we'll start the general method also. Okay, so let us move forward. e raised to x, ये भी एग्जाम्पल आप जनरल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और आपको इस एग्जाम्पल्स में एमवीपी भी यूज कर सकते हैं. तो अभी फिलहाल एमवीपी देखते हैं हम, जनरल मेथड तो बाद में देखने वाले हैं. शॉर्टकट मेथड से ये नहीं होगा क्योंकि ऐसा केस ही नहीं है हमारे पास. ओके, तो वाईपी जो है ये ऑक्सिलरी इक्वेशन फर्स्ट लेता हूं मैं. ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ओके, तो इसके रूट्स मिल जाएंगे मुझे, d इज इक्वल टू 2,1. ओके, तो मेरा yc हो जाएगा c1 e raised to 2x प्लस c2 e raised to x. और एक बात, कुछ लोगों ने अगर ऐसा लिखा, देखो yc इज इक्वल टू c1 e raised to x प्लस c2 e raised to 2x, तो शफलिंग u और v का होगा. अगर ये लेने के बाद जो आपको u मिलता है तो उसका इसमें आपको v मिलेगा. वो अगर यहाँ पे u का वैल्यू आपको a मिला और v का वैल्यू b मिला फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अगर आपने y1 y2 शफल किया है तो v आपको b मिलेगा और v आपको a मिलेगा और u आपको b मिलेगा. तो आंसर सेम होगा, आंसर वो गलत नहीं है क्योंकि आपने y1 y2 चेंज किया है. तो यहाँ पे e raised to 2x लिखा है और यहाँ पे e raised to x लिखा है, इसकी वजह से u और v आपको ये मिले हैं. अगर आपने e raised to x यहाँ पे लिखा और e raised to 2x यहाँ पे लिखा तो ये वैल्यू खाली इंटरचेंज हो जाएंगे, तो वो कुछ गलत नहीं है, वो बराबर है. खाली आपने वो y1 y2 एक्सचेंज किया है, इसके लिए आपको वो मिला है. ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज c1 y1 प्लस c2 y2. तो यहाँ पे मुझे मिल गया y1 इज इक्वल टू e raised to 2x एंड योर y2 इज नथिंग बट e raised to x. ओके, तो पहले तो डेरिवेटिव निकालना है, y1 डैश इज इक्वल टू 2 e raised to 2x. हालांकि yp जो है ऑक्सिलरी इक्वेशन आपका सेम है इसलिए आपको वही मिलेगा. ओके, तो 2 e raised to 2x and your y2 dash is simply e raised to x. Okay,
तो W जो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे सिंपली W इज इक्वल टू y1 y2 y1 dash y2 dash. Okay, so if I substitute the values, what I get, y1 is nothing but e raised to 2x, e raised to x, 2 e raised to 2x, e raised to x. जैसे कि हमने फाइंड किया है ऑलरेडी, इट इज माइनस e raised to 3x. गॉट इट? तो ये मुझे मिल जाएगा W. W का वैल्यू माइनस e raised to 3x है अभी, क्योंकि हमने ऑलरेडी वो फाइंड किया है, तो मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ. ओके, so you have find that, that's why I just have to take as it is. तो अभी मुझे क्या करना है, अभी yp लेना है. So what is yp? u y1 plus, so yp is equal to u y1 plus v y2. Okay, so what is u? U is integration minus y2 into x divided by w dx. ओके, तो y2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. y2 मेरा e raised to x है, so this is equal to what? Integration e raised to x माइनस तो बाहर निकल लिया, e raised to x dx divided by w. W is simply e raised to minus 3x. मैं राइट? तो अभी ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा. ओके, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा शायद. इंटीग्रेशन e raised to x, e raised to x divided by e raised to 3x into dx. तो यहाँ पे मुझे e raised to x के जगह पे t लेना है. e raised to x is equal to t, तो इसका डेरिवेटिव e raised to x dx मुझे मिल जाएगा dt. ओके, जैसा कि हमने देखा, तो ये जो पूरा वैल्यू है, इसका जगह पे क्या लेना है मुझे, e raised to x dx की जगह पे dt लेना है. और वो उस बाद में e raised to x तो मिल गया है. ओके, तो अभी दिस इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा इंटीग्रेशन e raised to t dt divided by t cube. ओके, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना है आपको. ओके, मैं ये अगर आपने ऊपर लिया e raised to minus 3 into e raised to t dt. ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ u into v dt, u into v dx. This is equal to u integration of v dx minus integration of derivative of v, derivative of u with respect to x into integration of v dx dx. तो आपका u और v क्या लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे. ओके, तो u और v चॉइस करने के लिए देखो, मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स थोड़ा सा समझाता हूँ आपको. तो जो आपका u और v है उसका चॉइस कैसा होगा, तो u और v का चॉइस करने के लिए आपको क्या करना है, लाइट रूल यूज करना है. L I A T E, ये लाइट रूल मिल जाएगा आपको. L stands for logarithmic function, I stands for inverse function, algebraic function, trigonometric function और exponential function. ओके, तो
यहाँ पे आपको यही सीक्वेंस लेना है। अलजेब्राइक पहले और उसके बाद में एक्सपोनेंशियल आ रहा है, देखो पहले अलजेब्राइक है उसके बाद में एक्सपोनेंशियल है। तो आपको ये वी यू लेना है और ये वी लेना है। तो यहाँ पे भी थोड़ा दिक्कत आ रहा है क्योंकि यू का जो पावर है वो -3 है। तो हमने देखना है डब्ल्यू ठीक से फाइंड किया है या नहीं। आई थिंक देयर मे बी अ प्रॉब्लम इन डब्ल्यू e raised to 3x। चेक फॉर दैट। रूट्स अगर बराबर है तो ठीक है, roots 2 or -1, so this is not +2 -2, actually these are -2 -1, that's why we have some mistake here. So -2 comma -1, so this is -x and -2x, so this is -2x minus x, so minus of these all are minus, that's why we have committed a mistake here, and in the previous example also I think. Let us check that. तो अगर ये सॉल्व किया मैंने तो यहाँ पे मिल जाएगा मुझे e raised to -2x इंटू e raised to -x, तो ये हो जाएगा e raised to -3x। ओके, तो दिस इज e raised to -3x, नॉट प्लस e raised to 3x। ओके, तो यहाँ पे भी ये -3x हो जाएगा, ये माइनस हो गया। ओके, ये -t³ हो गया और ऊपर जाके प्लस हो गया। ओके, इफ यू अंडरस्टैंड दिस, इसलिए हमको वो ठीक से मिल नहीं रहा था। तो अगर अगर मैं ये इसको ऊपर लेता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो e raised to x तो ऑलरेडी है उधर, e raised to x dx की जगह पे मैं dt लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे तो t मिल जाएगा मुझे, ये e raised to ये ये जो e raised to x है, यहाँ पे मैं t रिप्लेस करूंगा तो यहाँ पे मिल जाएगा e raised to t, e raised to x dx की जगह पे dt मिल जाएगा और ये t raised to -3 हो जाएगा। अगर मैंने उसको ऊपर लिया, अगेन लॉज ऑफ इंडाइसिस आर यूजफुल हियर, e raised to -m, so e raised to m, a raised to m is equal to 1 upon a raised to -m। अगर ये t raised to -3 ऊपर लिया तो वो प्लस हो जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा t raised to 3 into e raised to t dt। नाउ इट इज ओके। तो ये सीक्वेंस से हमको u और v लेना है। u आपका आ जाएगा t³, दिस इज योर u एंड दिस इज योर v। तो इससे भी और सिंपलेस्ट रिजल्ट मेरे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का है, और वो क्या है, अगर आपका u जो है अल्जेब्राइक हुआ और v जो है आइदर एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक हुआ, तो कौन सा रिजल्ट लेना है, तो वो मैं आपको बताता हूँ, वही यूज करना। इट इज वेरी सिंपल। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v dx, दिस इज u v1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3 माइनस u ट्रिपल डैश v4 प्लस 1। अल्टरनेट साइंस पॉजिटिव और नेगेटिव दिख रहे हैं आपको। और यूज ओनली व्हेन, देखो मैं नोट बता रहा हूँ ये कब यूज करना है आपको, यूज ओनली व्हेन u is algebraic and v is trigonometric और exponential। अभी आपको u, u डैश, u डबल डैश, u ट्रिपल डैश, ये डैशेस रिप्रेजेंट्स डेरिवेटिव। ओके, ये u का डेरिवेटिव लेते जाना है आपको, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और v1 मीन्स व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ v। व्हाट इज v1? v1 is simply integration of v। what is v2? It is integration of v1। what is v3? It is integration of v2 and so on। सक्सेसिव डेरिवेटिव्स और सक्सेसिव इंटीग्रेशंस आपको यहाँ पे लेने हैं। ओके, so this is the part of your basic integration। okay, this is not the part of example, this is for your understanding only। now let us come to the example। t³ e raised to t dt, अभी ये यूज करना है। तो इसका इंटीग्रेशन अगर आप लेते हो, इंटीग्रेशन ऑफ
टी क्यूब ई रेस टू टी डी टी, ये मैंने बताया ये u लेना है, ये v लेना है। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन मेरा आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, देखो मैं u एज इट इज लिखा मैंने, टी क्यूब, v का इंटीग्रेशन लेना है, उसका इंटीग्रेशन ई रेस टू टी आ जाएगा, u का डेरिवेटिव लेना है, ये 3t² डेरिवेटिव लिया मैंने, टी क्यूब का डेरिवेटिव 3t², आपको पता है एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला क्या है डेरिवेटिव का, इट इज एन एक्स रेस टू एन माइनस 1। ओके, तो पावर एक से कम होगा और वो जो पावर में था वो आगे आएगा, तो 3 आगे आया, उसका पावर एक से कम हुआ। ई रेस टू टी का अगेन इसका इंटीग्रेशन लेना है, ई रेस टू टी का, तो वो ऐसे आएगा, ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन सेम ई रेस टू टी, फिर से अगले स्टेप में आपको 3t² का डेरिवेटिव लेना है, और वो आ जाएगा आपका आई थिंक 6t, ई रेस टू टी एज इट इज, और फिर से -6t का डेरिवेटिव आ जाएगा 6, और ई रेस टू टी एज इट इज, और उसके बाद में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि 6 का डेरिवेटिव आगे 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव आगे 0 हो जाएगा आपका, तो इसके लिए अगले टर्म्स नहीं आएंगे, अगले सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे। ओके, तो देखो ये आपको यहाँ पे बहुत सिंपल मिल गया, अगर आप ये रिजल्ट यूज करते हो तो इतना सिंपल मिलेगा, नहीं तो इसमें तो बहुत सारे स्टेप्स ऐड करने पड़ेंगे फिर आपको। ओके, तो ये मिल गया। अभी अभी क्या करना है, ई रेस टू टी दिख रहा है मुझे हर जगह पे, वो कॉमन ले लो, टेक ई रेस टू टी आउटसाइड, टी क्यूब -3t² प्लस 6t -6, अभी t का वैल्यू रिप्लेस कर दो, इट इज सिंपली ई रेस टू एक्स इन ब्रैकेट ई रेस टू 3t प्लस 3 सॉरी माइनस 3 ई रेस टू 2t, सॉरी 2x नॉट t। जैसे मैंने ई रेस टू 3x की जगह पे टी क्यूब लिया था सब्स्टिट्यूशन में, तो वैसे ही अभी अभी देखो टी क्यूब मीन्स व्हाट, टी मीन्स ई रेस टू एक्स है, ई रेस टू एक्स का क्यूब, और ये हो जाएगा ई रेस टू 3x, तो सेम t² के लिए प्लस 6 ई रेस टू एक्स -6, ये हो गया आपका u, दिस इज योर v u, और v क्या मिलेगा अभी देखो, v मिल जाएगा मुझे, और v इज सिंपली इंटीग्रेशन y1x डिवाइडेड बाय w dx, तो y1 तो मेरा है ई रेस टू 2x, ओके, y1 is e raised to 2x sin sorry e raised to x divided by minus e raised to minus 3x into dx, तो ऐसा मिल जाएगा। और यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा अभी देखो, दिस इज माइनस आउटसाइड, इंटीग्रेशन ये अगर ऊपर गया तो प्लस हो जाएगा, e raised to 2x into e raised to 3x प्लस हो गया e raised to x dx, तो फिर से मुझे सेम सब्स्टिट्यूशन लेना, पर देखो अभी थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ई रेस टू 2x प्लस 3x मीन्स 5x हो गया इंटू ई रेस टू x dx, तो ये जो ई रेस टू 5x है, ई रेस टू 5x को मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, ई रेस टू 4x इंटू ई रेस टू x, क्योंकि अगर मैं ई रेस टू x की जगह पे t लेता हूँ तो सब्स्टिट्यूशन के लिए मुझे कुछ तो भी चाहिए, ई रेस टू x dx इज इक्वल टू dt, ये टर्म मुझे चाहिए यहाँ पे, जैसे मैंने u के जब u में लिया था, देखो अभी यहाँ पे मुझे यहाँ पे मिला था, देखो अभी ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स मिला था, वैसे ही हमको यहाँ पे सेम करना है। और अगर आप सेम प्रोसीड करते हो तो माइनस आपको मिल जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ई रेस टू 4x इंटू ई रेस टू एक्स कर लिया मैंने उसको, ई रेस टू एक्स dx, ओके, तो दिस इज माइनस इंटीग्रेशन, अभी ये हो जाएगा आपका टी रेस टू 4, और ये जो है ई रेस टू एक्स डी एक्स, इसके जगह पर मैं डी टी रिप्लेस कर दूंगा, और ये ई रेस टू टी हो जाएगा डी टी, तो सेम रिजल्ट आपको ऊपर जो यूज किया वही यूज करना है, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा माइनस
e raised to 4 एज इट इज, माइनस में बाहर लेता हूँ, सबको कॉमन आएगा, e raised to 4 एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ e raised to t is e raised to t माइनस इसका डेरिवेटिव लिया 4t क्यूब e raised to t एज इट इज, प्लस अगेन डेरिवेटिव लिया 12t स्क्वायर e raised to t एज इट इज, फिर से डेरिवेटिव लिया 24t e raised to t as it is and plus 24 as it is into e raised to t. That's it. अगली टर्म नहीं आएगी, अगली टर्म 0 हो जाएगा. तो ये e raised to t कॉमन लेना है आपको. दिस इज माइनस e raised to t अगर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में मिल जाएगा t raised to 4 माइनस 4t क्यूब प्लस 12t स्क्वायर माइनस 24t प्लस 24 और अभी t का वैल्यू रिप्लेस करना है. t का वैल्यू आपका e raised to x, so e raised to 4x minus 4 e raised to 3x plus 12 e raised to 2x minus 24 e raised to x plus 24 like this. ये आपका हो गया v. और आपको खाली ये u एंड v कहाँ पे रिप्लेस करना है, ये यहाँ पे, ये जो हमने yc लिया था, yp लिया था, दिस वन इन द इक्वेशन नंबर 2. और उसके बाद आपको yp और yc का एडिशन करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल. ओके, सो डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो दिस टाइप ऑफ, बट अगर ये सेम मेथड आपने जनरल से किया तो मे बी इट मे बी सिंपल, हम पता नहीं हमको, बट वो करके देखेंगे. मुझे लगता है वो सिंपल होगा, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत इजी है, खाली आपको ये रिजल्ट ध्यान में रखना है. अगर ये इंटीग्रेशन का बेसिक रिजल्ट आपको ध्यान में हुआ, then it is very simple. And that previous example is same. We have make a mistake over there. Instead of e raised to minus 3x, we just put it e raised to 3x. That's why we haven't got that. Okay, so just correct that and you will get the answer also. Okay, so hope you understand. This example is very simple. Once again, with the help of MVP, sorry, general method, उससे भी आपको इजी मिल जाएगा. तो ये अगला एग्जांपल जो है डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 इंटू आई. पिछले एग्जांपल में खाली आपको yp और yp डी से फाइंड करके एडिशन लेना है, तो मैं आपको वो के लिए छोड़ देता हूँ. ओके, तो डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 इंटू वाई ई रेज टू एक्स इंटू टेन एक्स. दिस इज एक्चुअली द लास्ट एग्जांपल फ्रॉम दिस मेथड एंड देन विल जस्ट मूव टू द नेक्स्ट. ओके, तो इसके बाद हम आगे की मेथड के लिए जाएंगे, जनरल मेथड. तो यहाँ पे क्या करना है, अभी यहाँ पे फर्स्ट हमको ऑक्सिलरी इक्वेशन लेना है. मैं आपको हिंट दे देता हूँ इसका कैसा सॉल्व करना है. डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 इक्वल टू 0 ले लिया मैंने, और ये 0 लेने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, d का वैल्यूज देखो, ये इरिड्यूसिबल इक्वेशन है, इसके रूट्स नहीं मिलेंगे आपको. ओके, दिस इज इरिड्यूसिबल. तो अगर आप d फाइंड करते हो, कॉम्प्लेक्स रूट मिल जाएंगे मुझे 1 प्लस माइनस आई थिंक. Okay, so try to find them. Already you will know how to find that. तो मुझे yc मिल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल जाएगा c1 cos x, सॉरी अल्फा भी है यहाँ पे, वो थोड़ा सा अल्फा इज नॉट 0 ओवर हियर. सो e raised to x in bracket c1 cos of beta means x plus c2 sin of beta. हाँ, अभी ये थोड़ा सा अलग हो गया. तो यहाँ पे y1 y2 क्या लेना है सर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया c1 छोड़ के जो भी होगा वो y1 होगा, तो e raised to x में मल्टीप्लाई कर लेना है. सो c1 इन ब्रैकेट e raised to x इंटू cos x, ये हो गया आपका y1, और प्लस c2 इंटू e raised to x इंटू sin x, ये हो गया आपका y2. रिमेंबर ऑलवेज दैट इफ यू हैव अ कॉम्प्लेक्स रूट्स देन y1 y2 आर फिक्स. y1 y2 चेंज नहीं होंगे. अगर आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है तो वहीं पे आपके y1 y2 चेंज हो सकते हैं. जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा कि y1 y2 अगर शफल किया आपने तो u और v भी शफल हो जाएगा, पर यहाँ पे y1 y2 शफल नहीं होंगे. हाँ, तो आपको c1 cos x ही लिखना है, पहले cos x ही आएगा, बाद में sin x ही आएगा. c1 sin x प्लस c2 ऐसा ऐसा नहीं लिखना है आपको. ओके,
तो यहाँ पे मुझे y1 मिल गया। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो यहाँ पे मुझे y1 मिल गया e raised to x into cos x. So what is my y1 here? E raised to x into cos x. And what is my y2 here? E raised to x into sin x. तो इसका डेरिवेटिव क्या क्या निकालना है हमें? y1 का डेरिवेटिव कैसे लेंगे आप? y1 का डेरिवेटिव निकालने के लिए आपके पास क्या है? u इंटू वी रूल डेरिवेटिव में है। बेसिक लेक्चर्स में मैंने बताया है डी डी एक्स ऑफ u इंटू वी, इट इज u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका u, ये हो गया v। ओके, सो y1 डैश इज इक्वल टू u मीन्स e raised to x as it is, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस cos x as it is, e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x as it is। और आपको e raised to x कॉमन निकालना है, माइनस sin x प्लस cos x। ये मिल गया आपका y1। तो सेम y2 क्या मिल जाएगा? y2 डैश e raised to x as it is लिखना है, cos x का sin x का डेरिवेटिव आपको cos x मिल जाएगा प्लस sin x as it is रखना है, e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x ही लिखना है। तो फिर से e raised to x कॉमन निकाला मैंने और cos x प्लस sin x मिल गया मुझे। तो ये वैल्यू डाल के आपको रॉन्स्कियन निकालना है यहाँ पे। ओके, तो W तो मिल जाएगा मुझे y1 y2 y1 डैश y2 डैश। तो मेरा y1 जो है y1 इट इज व्हाट इज दैट y1 e raised to x into cos x। कैलकुलेशन थोड़ा ठीक से करना है। e raised to x as it is माइनस sin x प्लस cos x इसका डेरिवेटिव, देन इट इज e raised to x into sin x और e raised to x cos x plus sin x like this। okay? तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर मैंने किया तो क्या मिलेगा मुझे? देखो e raised to x into e raised to x is e raised to 2x cos x as it is in bracket cos x plus sin x। ये हो गया फर्स्ट दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों का प्रोडक्ट मैंने ले लिया। e raised to x into e raised to x मेरा हो गया e raised to 2x और cos x as it is लिखा और ये ब्रैकेट ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस माइनस क्या करना है अभी? e raised to x into e raised to x फिर से e raised to 2x मिल जाएगा, sin x as it is लिखता हूँ और ब्रैकेट में मुझे मिल जाएगा माइनस sin x प्लस cos x। गॉट इट? अभी दोनों में मुझे ऐसा दिख रहा है कि e raised to 2x कॉमन है, तो मैं वो बाहर निकाल लेता हूँ। अभी प्रोडक्ट कर लेता हूँ, cos x into cos x is cos square x प्लस cos x into sin x, sin x into cos x लिखो, cos x into sin x लिखो। अभी माइनस माइनस बिकम प्लस sin square x हो जाएगा और माइनस sin x into cos x मिल जाएगा। तो ये तो कैंसिल हो रहा है मुझे, मेरा sin x प्लस sin x cos x माइनस sin x cos x और ब्रैकेट में मुझे मिलेगा e raised to 2x cos square x प्लस sin square x। गॉट इट? तो अगर इसका एडिशन किया मैंने तो क्या मिलेगा? दिस इज इक्वल टू, ये तो मेरी आइडेंटिटी है, खाली मुझे e raised to 2x मिलेगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो e raised to 2x। सो W मिल गया मुझे e raised to 2x। तो सिर्फ आपको क्या करना है, आपको u निकालना है, v निकालना है। u का वैल्यू पता है आपको, u इज नथिंग बट माइनस इंटीग्रेशन माइनस y2x डिवाइडेड बाय w dx। तो w का वैल्यू है आपके पास। ओके, और x भी है, y भी है, y2 है आपके पास। तो माइनस अगर बाहर निकाला y2 का वैल्यू, व्हाट इज द y2? तो अगर y2 इज सिंपली e raised to x into sin x, तो e raised to x into sin x, x का वैल्यू जो है मेरा, x is nothing but
e raised to x into tan x, okay, divided by e raised to 2x w dx. तो ये पूरा e raised to 2x कैंसिल हो जाएगा, e raised to x, e raised to x, e raised to 2x. तो sin x into tan x जो है मेरा, तो इतना ही रहेगा, sin x into tan x. तो इसका इंटीग्रेशन निकालना है आपको, ओके, ये आपको मिल जाएगा. सो सिंपल इंटीग्रेशन है. यहाँ पे tan x की जगह पे आपको sin अपॉन cos करना है और ऊपर sin स्क्वायर अपॉन cos x मिल जाएगा आपको. सो दिस इज सिंपली यू विल गेट sin स्क्वायर x अपॉन cos x. तो sin स्क्वायर की जगह पे आपको सिर्फ क्या रखना है, 1 माइनस आइडेंटिटी है आपके पास, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1. तो sin स्क्वायर x का वैल्यू मिल जाएगा मुझे 1 माइनस cos स्क्वायर x. तो ये वैल्यू आपको रिप्लेस करना है, 1 माइनस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos x. तो ये cos x दोनों को डिवाइड में है, तो वो वैसा करके आपको सिर्फ ऐसा मिल जाएगा, 1 अपॉन cos x यहाँ पे मिल जाएगा, माइनस cos, एक cos कैंसिल हो जाएगा और cos x मिल जाएगा. तो 1 अपॉन cos मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ sec x माइनस cos x, और ये बेसिक हो गया. अभी sec का इंटीग्रेशन फाइंड करो, cos का फाइंड करो, दैट विल बी द आंसर. ओके, ये आपको आ जाएगा. v भी फाइंड करना है, v फाइंड करने के लिए आपको y1 x डिवाइडेड बाय w dx करना है. y1 का वैल्यू है, x का वैल्यू है, w का वैल्यू है. ओके, वो सारे वैल्यूज रिप्लेस करो, v का वैल्यू डालो और yp फाइंड करो. yp मिलने के बाद yc और yp का एडिशन करो. ओके, hope you understand. If you have any doubts, then let me know about that. We will discuss them in the next lecture also. Okay, so practice more and more example with the uh, given methods. Okay, and if you don't understand the method also, just go to the videos, check the previous lectures, and then try to solve the examples. Okay, so hope you understand. Tomorrow we will come with the very interesting and another method. It is a general method, okay, and it is so simple, but it contains some integral. So hope you will also enjoy with that. Thank you.